یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 37ویں آیت۔ John chapter 7 verse 37۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 37 آیت میں لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ کیا پکار کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی تھی جس کو وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع بھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ جو پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب اور اس کی پہلی آیت۔ Isaiah chapter 55 verse 1۔ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ یسایہ کی کتاب میں چیپٹر 44 میں بھی ہم دیکھیں گے، اور اس کی تیسری آیت۔ کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی اڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا۔ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو۔ ایک تو کہے گا میں خداوند کا ہوں، دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا کہ میں خداوند کا ہوں، اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت۔ آمین۔ یہاں پر یوحنا کے انجیل میں عید قیام کے موقع پر خداوند یسوع مسیح وہاں پر کھڑے ہیں، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ عید قیام جو ہے وہ وہاں پر تھی، اور عید چل رہی تھی، اور سارے یہودی جو تھے، سارے قوم بنی اسرائیل ہیکل کے اندر وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور فریسی جو تھے وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو مرضی ہو جائے عید کو مس نہیں کرے گا، کیونکہ یہ قانون تھا خداوند کی طرف سے کہ سب نے عید میں آنا ہے۔ اور عید کا آخری دن جس کو شمینی اعتذرت کہتے ہیں، یا 8واں دن جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی پیدائش بھی عید قیام پہ ہوئی تھی، اور 8ویں دن جو ہے وہ ان کا ختنہ ہوا تھا، تو یہ آخری دن جو ہے وہ عید کا جو 8واں دن ہے، 7 دن کے بعد جب پہلا دن اس کو کہتے ہیں، ہفتے کا 8واں دن ہفتے کا پہلا دن بھی ہوتا ہے، اٹس اے نیو بگننگ، اس کو شمینی اعتذرت یا شمخا تورا کہتے ہیں عبرانی زبان میں۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک رات میں جو یہودی لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ پورا توریت ختم کرتے تھے، یعنی کہ پورا سال یہودی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ توریت کو، جس کو ہفتورہ یا اس کو کہتے ہیں پراشا کہا جاتا ہے، یعنی کہ پورشن، تورا پورشن، اس کے انہوں نے 52 حصے کیے ہوئے ہیں پوری توریت کے 5 کتابوں کے، اور ان کتابوں کو حصہ بہ حصہ پڑھا جاتا ہے، اور پورے سال میں ان 5 کتابوں کو فنش کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس رات میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس دن میں، آخری دن میں، پوری توریت کو ایک ہی سانس میں پڑھا جاتا ہے، خداوند کے کلام کو ایک ہی سانس میں۔ اور یہ جو اسلامک آئیڈیاز ہیں کہ جی وہ ہم نے یہ کرنا ہے اور شب قدر میں پورا قرآن ایک ہی دن میں پڑھ لیتے، وہ والا حساب، یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ بائبل کی سارے یہودیوں سے یہ چیز چوری کی گئی۔ تو آخری دن جب آیا، جو عید کا آخری دن تھا، جس میں خاص طور پر انہوں نے پوری اس توریت کو پڑھنا تھا، بائبل کو پڑھا جانا تھا، اس کلام کو پڑھا جانا تھا، اس کو پیدائش سے لے کر استثنا تک، یعنی کہ جینیسس سے ڈیوٹرونومی تک پڑھا جانا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے سڈنلی کھڑے ہو کر ایک بہت بڑا وہاں پر دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ اور یہ وہ دن تھا، عید کا آخری دن ہوتا تھا کہ جس میں غیر قوموں کو بھی اجازت ہوتی تھی کہ وہ لوگ آئیں اور ساتھ میں شامل ہوں، کیونکہ عید قیام جو تھی وہ غیر قوموں کی عید کہلائی جاتی تھی۔ باقی موقعوں پر یہودی اپنی ہیکل میں لوگوں کو الاؤ نہیں کرتے تھے، اور غیر قوموں کا ایک خاص احاطہ
बनाया गया था। अगर आपके पास पुरानी बाइबल्स हैं जिनके पीछे नक्शे बने हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हैकल का जो नक्शा है उसमें एक साइड पे आता है, उसको कहा गया कि ये गैर कौमों का है, आता है, द कोर्टयार्ड ऑफ जेंटाइल्स, और वहां पर आया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि आखिरी दिन जो कि कलाम सुनाए जाने का दिन है, जो कलाम के आगाज से इख्तिताम का दिन है, जो अव्वल और आखिर का दिन है, उस दिन खुदावंद ने खड़े होकर वहां पर कहा कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां उससे जारी हो जाएंगी। और किताब मुकद्दस में कहां पर आया? मैंने आपको यशायाह नबी की किताब में से वो सहीफे, वो हवाले पढ़वाए। सो कलाम जो है यहां पर खुदावंद यीशु मसीह की तशबीह है, खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता है, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु मसीह ही जिंदा कलाम है, यीशु मसीह ही जिंदा किताब है, यीशु मसीह ही चलती फिरती शरीयत थी, यीशु मसीह वो कलाम है जिससे प्यास को बुझाया जा सकता है। सो यीशु मसीह ने वहां पर क्लेम किया। और इस यूहन्ना की इंजील में थ्रू आउट अगर आप देखें तो यीशु मसीह के जितने भी क्लेम हैं मैं हूं के साथ, उन पर कभी आप गौर करें। मुख्तलिफ मौकों पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्लेम्स किए थे, और यूहन्ना की इंजील में तकरीबन 10 जगहों पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को क्लेम किया था। और ये वाहिद टर्मिनोलॉजी थी जो सिर्फ यहोवा के लिए थी। आपको पता है यहोवा ने अपना नाम क्या बताया था मूसा को, कि मैं हूं जो सो हूं, मैं हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। ये खुदावंद ने वहां पर अल्फाज अदा किए थे, और बार बार खुदावंद यीशु मसीह ये अल्फाज अदा करते थे। इसलिए यहूदी बहुत चिढ़ गए थे कि ये अपने आप को खुदा जाहिर करता है। कौन कौन से खुदावंद ने दावे किए थे कि मैं क्या हूं? कोई मुझे बताए। मैं दुनिया का नूर। और क्या कहा था? मैं क्या कहा था? अल्फा और ओमेगा। नहीं, ये तो मुकाशफे में कहते हैं। यूहन्ना की इंजील में कहा था मैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं और भेड़ों का दरवाजा हूं। आई एम द डोर, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावंद ने ये दावा किया था। खुदावंद ने और भी दावा किए थे, आसमान से जो रोटी उतरी वो मैं हूं। इब्राहिम जिसका दिन देखने की ख्वाहिश रखता था वो मैं हूं। आपको याद है जब खुदावंद ने कहा था तो उन्होंने पत्थर उठा लिए थे यहूदियों ने। सो खुदावंद यहां पर दावे कर रहे हैं, बार बार दावे कर रहे हैं। खुदावंद बड़ी बड़ी यहां पर उन्होंने अपने जो है वो बड़ी बड़ी बातों के वसीला से, उन बड़े क्लेम्स के वसीला से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया है हैकल में। और यहां पर खुदावंद कह रहे हैं कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। ओपन इन्विटेशन है। सो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। और यशायाह में हमने क्या पढ़ा था, दोबारा हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसके 55 बाब में क्या पढ़ा था कि ऐ सब प्यासों पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, वो भी जिसके पास पैसा ना हो। कलाम में लिखा है कि निजात का पैगाम जो है वो दुनिया के लिए, हलाक होने वालों के लिए क्या है? बेवकूफी है। इट डजंट मेक सेंस। जब नुमान कोड़ी जो था उसने जाकर क्या किया, नुमान कोड़ी ने एलिशा के पास जब वो गया, नबियों के पास गया, तो उन्होंने नुमान कोड़ी को क्या हुक्म दिया था कि क्या करना है? जाके 7 बार गोते मारने। यर्दन के अंदर 7 बार उसने क्या करना था? गोता मारना। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि ये क्या फजूल बात है। और उसने नबी ने उससे मिलने की भी ख्वाहिश नहीं की, हालांकि वो बहुत बड़ा सिपहसालार था, पैसे भी बड़े लेके आया था। हमारे चर्च में कोई आया कि जी आप मैं एड भी लेके आवांगा, तो हम कहेंगे अच्छे आके बैठो, अच्छे बल्कि अच्छे आ जाओ। लेकिन क्या है कि तुम खुदा के नबी ने क्या कहा? आई डोंट वांट टू सी यू, आई डोंट नीड यू, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है। तो ऐसा कर, तू फलां जगह पे जा, अपने खादम को भेजा और कहा कि जाकर तू ऐसा कर के वहां पर जाकर गोता मार ले। उसने कहा कि, और जॉर्डन का रिवर आपने अगर देखा हो जहाँ पे बैप्टिज्मल साइट है, एक तो बड़ा प्यारा सा पूल सा बना दिया हुआ है वो गलील वाली साइड के ऊपर जहाँ पर बपतिस्मे दिए जाते हैं। लेकिन हम जब इस्राइल में थे तो हमारा वो ड्राइवर था, वो मुसलमान ड्राइवर था, तो वो हमें लेकर बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्डन की साइड पे ले गए, जहाँ पर यानी कि दरिया बहुत पतला सा हो गया, मेरा ख्याल जितना ये कमरा है इतनी दरिया की चौड़ाई थी। और उस दरिया के उस तरफ जो था वो जॉर्डन का कंट्री था, इस तरफ इसराइल का, और 7 फौजी बैठे हुए थे। और वहां पानी जो था वो बहुत गदला था, मिट्टी वाला पानी था, और उसका कलर जो था वो ब्राउन कलर का था। और उसने कहा कि ये वो जगह है
जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देता था, एनून के पास, जहाँ पर खुदा में यीशु मसीह और उसके शागिर्दों ने भी बपतिस्मा दिया, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ, जहाँ पर यूहन्ना भी, क्योंकि वहाँ पे पानी था और वो गदला पानी था, और ये वही जगह थी। और मुझे एकदम याद है जब मैंने वो जगह देखी कि उसने जाकर जगह देखी होगी नुमान ने, और उसने कहा कि मैं उस कीचड़ में जाके बपतिस्मा लूं, उसमें 7 बार गोता मारो। इतने खूबसूरत हमारे दरिया अबाना और फरफर उनके दरिया थे असूरियों के। उसने कहा कि हमारे तो इतने जबरदस्त दरिया हैं उधर, इतने ब्यूटीफुल दरिया हैं, उनके ऊपर बाकायदा सिस्टम बने हुए हैं सारे, हम उधर जाके क्यों ना करें। उसने कहा कि मैं इसमें गोता मारता। लेकिन फिर उसके खादिम ने इसको क्या कहा कि अगर वो तुझे कहता कि जी इतने पैसे ले आओ, ये करो, उल्टे सीधे जैसे हिंदुओं के बाबे बताते हैं, या ये जो पीर फकीर मुसलमानों को बताते हैं कि जी बकरे की सिरी ले आओ, फलाना ले आओ, ले आओ, ये इतने किलो दाल ले आओ। मुझे पता है वो टीवी पे एक बंदा इतनी सारी अंगूठियां पहन के बैठा होता है, वो उपाय बताता है, उससे कुछ भी मुझे कहता है जी इसका उपाय क्या है। वो एक बंदा बैठा होता है, वो कंप्यूटर में थोड़ा सा करता है और फिर कहता है जी इंज करो, रेड कलर का कपड़ा लेना, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ चावल पा दो, थोड़े 2 टिक्कियां सोने दी रख दो, उत्ते विच एक चांदी दा रख दो, ये फलाना, एक जगह ते ਇੰਨੇ मील चले जाओ, उधर जाके उसको दबा दो, ये करना, और फिर ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदावंद का कलाम निजात का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए जो है खुदा की कुदरत है। ये मुफ्त है, ये मुफ्त है। जो कोई प्यासा हुआ है और आबे हयात मुफ्त में पाएगी, विद नो प्राइस। और यही बात जो है उसको चुभती थी नुमान को। लेकिन उसके खादिम ने कहा कि अगर वो ये तुझसे कहता कि ये कर वो कर, तो तू क्या ना कर। ये तो इतनी इजी बात उसने तुझे की, करके देख। एंड देन he did that, और उसने क्या किया कि उसी वक्त शिफा पा गया। उसका बदन लिखा है कि बच्चों की तरह हो गया, जैसे बच्चे का बदन होता है, ऐसे उसकी स्किन होगी। दुनिया की कोई क्रीम ऐसी स्किन नहीं बना सकती जैसी उस वहां पर खुदावन ने उसको अता कर दी। हालेलुया। सो उसने कहा कि ऐसा प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा नहीं है, अमीर है या गरीब है, भूखा नंगा है या बादशाह है, कोई भी है, एवरीबॉडी इज अलाउड। खुदावन के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा नहीं है, आओ मोल ले लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। कैसे मोल लेना है? पैसे भी नहीं है तो फिर मोल कैसे लेना है? क्या चीज दे के मोल लेना है? What do we need to give in response to that? In exchange हमने क्या देना है उस चीज को? ईमान। ईमान लाना क्या है? बाइबल में क्या लिखा है? मेरे साथ देखिए रोमियो का खत। ईमान, हमारी बहन ने कहा ईमान जो है वो मोल हमने देना है। एक्सचेंज रेट क्या है उसका? कि गेट द ब्लेसिंग इन एक्सचेंज ऑफ ईमान, फेथ। बाइबल में क्या लिखा है? रोमियो 10:10 में, रोमन चैप्टर 10 वर्स 10 में, रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। ईमान लाना कैसे होता है? दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है। सो यहां पर दिल और मुंह की बात हो रही है। उसने भी, यीशु ने भी यही कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, और लिखा है कि उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी और वो हलाक भी नहीं होगा। लेकिन क्या कह रहे कि वो मेरे पास आकर पिए। तो पीने के लिए किस चीज का इस्तेमाल है? मुंह का। मुंह से पिया जाता है। सो ईमान दिल और निजात के लिए इकरार मुंह से करना है। लेकिन इस इनविटेशन की एप्लीकेशन किसके ऊपर हो रही है? लिखा है कि अगर कोई क्या हो तो मेरे पास आए, अगर कोई प्यासा हो। प्यासा कैसे पता चलेगा कि हम प्यासे हैं? हफ्ते में एक दिन कलाम पढ़ लिया, दुआ कर ली। आपको कैसे पता चलता है नॉर्मल लाइफ में कि आप प्यासे हैं? जब आप प्यासे होते हैं तो क्या होता है? बॉडी पे क्या हो रहा होता है? बंदा गुस्से जा जाता है, बंदा परेशानी चितमड़ी लड़ जाती है ना, बैठा नहीं जाता, ठीक है ना, कभी इधर जा कभी उधर जा, गला खुश्क हो जाता है, एनर्जी लो हो जाती है, पागल हो रहते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ब्रेन आपका डेड होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि भाजी के अंदर आए थे पानी तो उस वक्त पानी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। मेरे साथ देखिए मिसाल की किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 25।
लिखा है कि निकालिए 25वां बाब और उसकी 25वीं आयत। इमसाल 25वां बाब और उसकी 25वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 20 लिखा है कि वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए ऐसी है जैसे थके मांदी की जान के लिए ठंडा पानी। हालेलुया। प्यासे के लिए ठंडा पानी, वो खुशखबरी जो खुदावंद की तरफ से है, दूर के मुल्क में से। लेकिन शर्त क्या है कि प्यासा होना पड़ेगा, प्यासा होना पड़ेगा। जो प्यासा होता है वो डेस्परेट होता है, और जो डेस्परेट होता है ही कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना, ही कैन डू एनीथिंग टू गेट दैट। सो अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लेसिंग पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद से हासिल करें, तो फिर देन वी विल हैव टू बी डेस्परेट, ठीक है ना, डेस्परेट होना पड़ेगा। ठंडे ठंडे मीठे मीठे होके ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आई कैन टेल यू स्ट्रेट, इट वोंट हैपन। शायद मिल जाए लेकिन देर लगेगी। क्योंकि आप ये देखें कि आपको प्यास नहीं लगी तो आप उठ के तो बार बार धक्के से तो पानी नहीं ना पी, यू विल ओनली गो व्हेन यू आर थर्स्टी, ठीक है ना। तो आपका हार्ट नहीं होगा उसमें। अगर आप प्यासे नहीं हैं तो आपका हार्ट नहीं होगा उसमें, यू वुड नॉट वांट इट। हो सकता है कोई जबरदस्ती आपको दे दे, आपको लग्जरी के तौर पर आप जूस पकड़ के पी लें, लेकिन प्यास जो है वो आपको डेस्परेट करेगी। प्यास जो है वो आपको लेकर जाएगी उस मकाम के ऊपर। प्यासा होना चाहिए, प्यासा होना पड़ेगा। और हम हर रोज अपने बदन के लिए कितना कुछ करते हैं। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हम नहाते धोते हैं, हम अपने आप को संभालते हैं। हमारा बदन जो है वो हमारे लिए जो है वो मेन चीज है। लेकिन कलाम की प्यास कैसे होगी? प्यास कैसे जो है वो हमारे अंदर पैदा हो? मेरे अजीजों, ये दुआ के वसीला से काम बढ़ेगा, ये दुआ के वसीला से काम बढ़ेगा। रिकग्नाइज करना होगा। आपको पता है कि जब वो जो सामरी औरत आई थी, मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील 4 बाब में, जॉन चैप्टर 4 और उसकी 13वीं और 14वीं है। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा। मीन्स के जो दुनिया के चक्कर में रहता है, जो बदन की ख्वाहिश को पूरा करता है, जो अपने फिजिकल रैल्म के अंदर रहेगा, वो प्यासा होता जाएगा। इट विल कम बैक अगेन। उसको जरूरतें होती रहेंगी। लेकिन लिखा है कि जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, तो फिर वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। हालेलुया। जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। लेकिन की क्या है यहाँ पर, चाबी क्या है इसको हल करने की? यहाँ पर खुदावंद ने शर्त क्या रखी है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अगर कोई प्यासा है तो खुदावंद यीशु मसीह इज इंटरेस्टेड इन आवर प्यास। वो हमारी थर्स्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। खुदावंद चाहता है कि हम उसके लिए प्यासे हों। मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 4 चैप्टर 5 और उसके वर्स 6। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6, कोई जोर से पढ़े। मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। हालेलुया। क्या लिखा है कि मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो आसूदा होंगे। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरस ली है, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। As the deer, जैसे हम गीत गाते हैं। तो ये सारा चक्कर जो है इस चीज का है। डेस्परेट होना पड़ेगा। और उस शख्स के बारे में तो आप जानते ही हैं जिसके बारे में लिखा है कि वो आया और उसने आकर नॉक किया। उसने कहा कि मेरा दोस्त आया तो उसके लिए मुझे रोटियां चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं तो सौ गया, मेरे बच्चे भी लेट गए हैं। और उस जमाने में लोग क्या करते थे कि अपने बच्चों को अपने साथ बांध कर सुलाते थे। और जो दरवाजा था वो इतना बड़ा होता, उसके बड़ी सी सिल बीच में लगाते थे लकड़ी का, वो जो एक बाला से लगा, उसको उठाने के लिए कहीं 2-2 बंदों की जरूरत पड़ती थी क्योंकि चोरी चिकारी का खतरा होता था। तो वो उसने कहा कि इतना एफर्ट मैं क्यों करूं तेरे लिए? और बाइबल कहती है कि उसकी बेहयाई के सबब से, बिकॉज ही नेवर स्टॉप्ड आस्किंग, उसने मांगना छोड़ा ही नहीं है, उसने बार बार दरवाजे पर नॉक किया। और बेइंसाफ काजी की मिसाल जिसमें लिखा है कि बेवा उसके पास जाती थी, उसको कहती थी मेरा इंसाफ कर, और वो आगे से कभी कुछ करता था, कभी कुछ, क्योंकि उसको होता था कि शायद मेरे को थोड़े पैसे लावेगी। और लिखा है कि उसने उसको इतना तंग कर दिया कि वो, हालांकि वो बेइंसाफ था, लेकिन उसने क्या किया, उसका काम
कर दिया। खुदावंद यीशु भी यही चाहता है। And he himself is saying, वो खुद कह रहा है कि मुझे तंग करो प्लीज। आप में से कौन है जो ऐसा करता है? कौन कहेगा आपको? आप कहेगा कि मैंने जरूर मैंने सुताना, मैं सुता भी होगा तो मैंने जगा देना। कल शायद बहन इस तरह कह रही कि मैं कर लेती। तो ये बहुत कम लोग हैं जो इस तरह कहेंगे। पीपल वी डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब। हम कहते हैं कि ठीक है, कहते हैं मैं कर दूंगा, मेरे को टाइम होगा मैं कर दूंगा। हम अमूमन यही होता है। मेरे पास ये जुमला बहुत होता है। मैं शिकायना को अमूमन ये बात कहता हूँ कि जस्ट डोंट बॉदर, बस मुझे कह दिया मैं कर दूंगा, अब बार बार मुझे ना कहो। लेकिन खुदावंद क्या चाहता है कि हम बार बार उससे कहें और उससे प्यास जो है हमारी बुझेगी। मेरे अजीजों, हमें अपनी प्यास को बढ़ाना होगा। हमें कलाम का भूखा और प्यासा होना पड़ेगा, रास्तबाजी का भूखा और प्यासा होना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि हम प्यासे हैं? जब हमारा जैसे पानी ना मिले तो हमें बेचैनी होती है। क्या कभी हमें दुआ ना की हो अगर एक दिन तो बेचैनी होती है? क्या अगर कलाम नहीं पढ़ा तो बेचैनी होती है? क्या बच्चों को बेचैनी होती है? मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं जब उनसे फोन लिया जाता है तो बड़ी बेचैनी होती है, ढूंढ रहे होते हैं, कोनों खुदरों में जा के देखते हैं। वेरी लाइक मैं हैरान होता। एडिक्शन है ना एक तरह की, कि बुक्स के पीछे देखना है कि आंटी ने कहाँ पे छुपा दिया फोन, कहाँ पे है, किधर बेगों में देखना, किसी से पूछना, किसी से हाथ जोड़ने, तरले मिलते हैं मेरे पास आकर मैनू प्लीज बता दो कितने भेजे ना। दैट इज बेचैनी, ये है प्यास। तो ये ठीक है, दुनियावी चीजों के लिए है क्योंकि हम पसंद करते हैं चीजें, लेकिन कलाम के लिए भी फिर ऐसे हो। बरकत अगर पानी है तो खुदा के लिए भी ऐसी प्यास हो, बेचैनी हो, कोनों खुदरों में जाकर उसको ढूंढे, फाइंड अ प्लेस। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारे एक दरमियान में ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने ऑफिस में ब्रेक टाइम में लंच पे जाके बंद कमरे में, क्वाइट कमरे में जाके दुआ करते हैं, जो अपने अपने घरानों में बैठते हैं दुआ करते हैं, जो अपने शाम को फैमिली को लेकर बैठते हैं दुआ करते हैं। ये प्यास है और इससे जो है वो बरकत मिलेगी और वो पानी हमारे लिए खुदावंद ने मुहैया किया। मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील। अब पीने के लिए क्या है? खुदा ने कहा मेरे पास आकर पियो। 6वां बाब और उसकी 53वीं आयत है। हमने पीना क्या है यहाँ पर? अगर कोई प्यासा हो, जॉन चैप्टर 6 वर्स 53, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। सो पहला असूल क्या है कि हमें प्यास रखनी है। दूसरा असूल क्या है कि हमें यीशु के पास जाना है, ठीक है ना। प्यास अगर है तो वाहिद जरिया हमारा यीशु है। कोई बाबा, पीर, फकीर, कोई दुनियावी बंदा, कोई इंसान नहीं है, सिर्फ जीसस का है, सिर्फ यीशु है, यीशु मसीह है जिसके पास जाना है। और पिए, क्या पीना है? लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम अपने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। जिंदगी का पानी क्या है? खुदावंद का जिंदा कलाम। यूहन्ना की ही इंजील में देखें और उसके 15वें बाब में जाएंगे। कलाम का फायदा क्या है? उसकी 3री आयत, जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। क्या लिखा है? कोई पढ़े यहाँ पर। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। इफिसियों के खत में देखें, इफिशियंस चैप्टर 5। यीशु ने हमारे लिए क्या किया? उसकी 26वीं आयत, 26 वर्स। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26। Ephesians chapter 5 verse 26। इफिसियों 5वां बाब और उसकी 26वीं आयत। क्या लिखा है कि ताकि उसको कलाम के साथ, किसके साथ? कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर, यानी कलाम के पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, साफ करके मुकद्दस बनाए। और इब्रानियों का खत Hebrews chapter 6 में जाएंगे। Hebrews chapter 6
और उसका वर्स 7 लिखा है कि जो ज़मीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारआमद सब्जी पैदा करती है जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। यानी कि दिल की ज़मीन पर बारिश जो है वो बार बार पड़े। तो कुलिया क्या है, पीना कैसे है कि यीशु के लहू को जो कि नजात का बायस है, उसके बाद बार बार दुआ जो है वो बार बार बारिश को लेकर आएगी, क्योंकि दुआ के वसीले से क्या होता है, खुदा का रूह हमारे दरमियान में आता है। खुदा का रूह आता है तो रूह की बारिश जो है हमारे ऊपर होती है। रूह की बारिश होती है तो जमीन पर काश्तकारी होती है। खुदावंद बीच में हल चलाता है, हल चलाएगा तो वहां पर सब्जी उगेगी और क्या होगा कि फल पैदा करेगी। और खुदावंद क्या करेगा कि उस पानी से, यानी जो जिंदा कलाम है, शिमखा तोरा क्या किया जाता था उस दिन, कि उस दिन पूरी कौम क्या करती थी, खुदावंद की तौरेत को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते थे। क्यों कलाम को पढ़ा जाता था? ताकि वो पानी के साथ धो दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले। और जब ये सुनसे आए तो उन्होंने आकर अनाउंस किया कि मेरे से आकर ये पानी ले लो। और फिर क्या होगा, इस चीज का मैं गवाह हूं कि जब से हमने खुदावंद के पाक रूह का बपतिस्मा लिया, कलाम का फ्लो आना शुरू हो गया। अंदर से कलाम फिसल फिसल के जैसे बाहर आता है, वैसे खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों में से चलना शुरू हो गया। तो मेरे अजीजों, हमें ये काम करना होगा। वी नीड टू बी डेस्परेट नाउ। हमें जो है वो बरकत अगर लेनी है, मैंने ये पहले भी कहा था कि ये जो साल है ये अहद का साल है। हमने कवेनेंट्स बांधने हैं खुदावंद से और उन कवेनेंट्स को रिसीव भी करना है, उन बरकतों को हमने अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में। एंड मेक इट अ टारगेट इस साल में। और इसमें क्या करें कि खुदावंद के पाक रूह को अपनी जिंदगी में लेना शुरू कर दें, खुदावंद के पाक रूह को अपने लिए मांगना शुरू कर दें। और लिखा है कि जो प्यासा होगा मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। जिंदगी के पानी की। आखिरी वाला देखें, यशायाह की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत। यशायाह की किताब, आइज़ाया चैप्टर 12 वर्स 3। वर्स 2 से बल्कि मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि देखो खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा जोर और मेरा सरूद है, वो मेरी निजात हुआ है। बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। क्या करोगे? खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। निजात के चश्मे कौन है? तुम्हारे अंदर से क्या लिखा है कि चश्मा जारी है। जैसे ने ये कहा था ना उसको, औरत को, सामरी औरत को। और लिखा है कि तुम्हारे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। We will become a source of blessing. We will be the fountain of salvation. निजात का चश्मा हम बन जाएंगे। We will become the spring of salvation. Hallelujah. लोगों के लिए निजात का बायस बन जाएंगे। और लिखा है कि और उस वक्त तुम कहोगे कि खुदावंद की सिताइश करो, उससे दुआ करो, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो कि उसका नाम बुलंद है। खुदावंद की मदसराई करो, क्योंकि उसने जलाली काम किए हैं जिनको तमाम दुनिया जानती है। खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए। होली स्पिरिट इज द की फॉर दैट। हमें मांगना है खुदावंद से। प्यास, अपनी प्यास को चेक करें। अगर नहीं है प्यास तो फिर अपने आप को चेक करें। खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे प्यास दे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यास है। हमारा डॉक्टर जाके नब्ज पढ़वाओ उनको कि डॉक्टर साहब मैंने प्यास नहीं लग दी, ठीक है ना, मैं क्या करूँ अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम, मुझे भूख, हम देखते हैं लोग जाते हैं, डॉक्टर साहब मैंने भूख नहीं लगती, मैंने नींद नहीं आती, मुझे ये नहीं होता। तो यीशु को कहें कि डॉक्टर साहब मुझे प्यास नहीं लगती, चेक मी वाई, मैं क्यों नहीं दुआ करता, मैं क्यों नहीं कलाम पढ़ता, मैं क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में खुदा का काम। तो उससे फिर जो है खुदावंद आपको बरकत देगा। एंड दिस इज द लिविंग वर्ड जो आपके अंदर से जारी होगा। एंड होली स्पिरिट इज देयर टू हेल्प यू, वो आपको मदद करेगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। आमीन।